Namaste dear friends and dear students, how are you all? Welcome to RED online classes. Today we are here to discuss block number 13, topic number 2. Before starting our topic, let's discuss the resources that we need for today's class. We need the content book, notebook, workbook and the pencil. So let's discuss the previous topic. In the previous topic we have read about the early settlement. So can you tell me why the ancient people used to settle near the rivers? Why they settle near the rivers? वो क्यों रिवर बैंक के पास में ही सेटल हो गए और कहीं नहीं हुए? बिकॉज सो दैट दे कैन गेट द वाटर इजीली. वहाँ पे उनको पानी मिल गया फॉर देयर लाइक डे टू डे हाउस होल्ड वर्क. उनके जो रोज के जो काम थे उनको वो इजीली कर पाते थे फॉर देयर कैटल्स, फॉर लाइक ट्रांसपोर्टेशन, फॉर देयर एग्रीकल्चर. येस. Okay, now let me know कि how, as we have discussed earlier also, how do we get the water at our home? We used to get the water from the tap. टूटी से हमें पानी मिलता है and that from the tap, in the tap that water comes from the pipeline. The pipeline is attached to the that water plant, and in the water plant the water is stored, and from where that the that water comes in the water plant, from the rivers or the lakes. Yes, today we are going to talk on this topic only. So let's see what is our topic and let's see the aim for our today's topic. So the topic is purification of river water. As you know that there are so many impurities in the river water or in the open water. Today we will talk how the water is purified before coming to our house. Next, today the aim is describe steps involved in purification of river water before it reaches our home. कि आज हम वो देखेंगे, हम पता करेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स हैं वो यूज़ होते हैं रिवर वाटर को प्योरिफिकेशन करने के लिए. उसके बाद हमारे वो घर में पहुँचते हैं, वो स्टेप्स देखेंगे. आज हमारे घर में पानी पहुँचने से लेकर रिवर से पानी आने तक बहुत सारे स्टेप्स. And the words in focus is sedimentation, filtration and chlorination. So we will talk about these later. So let me know as we have discussed that the water हमारे घर में वो टैप से आता है. टैप से वाटर सप्लाई जो है वो सेंड करती है और वाटर सप्लाई में हमारे रिवर्स, लेक्स या कैनाल से आता है. सो द एक्टिविटीज दैट यू हैव टू ओपन योर S2. Please open your S2 of page number 26. After opening it, you have to see this picture, the diagram very carefully. इस diagram को बहुत ध्यान से देखना है आपने, और diagram को देख के आपने ये steps देखने हैं कि कैसे जो water है start होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर then third step, then fourth, and then how it reaches our home. ये देखने के बाद you have to write the steps in your notebook into a paragraph. You will form a paragraph and you will write your these steps in your notebook. Like describe how water is cleaned and supplied to our homes. You have to write here in your notebook. I hope you have done the activity. So let's see the activity parts. Let's just see how I have written a paragraph. So you can write the paragraph. So let's discuss the questions. But before that, I'm going to tell you one amazing fact. जो unsafe water है उससे हर साल near about 200 चिल्ड्रन हैं, उनकी डेथ होती है पर आवर. हर एक घंटे में 200 चिल्ड्रन की डेथ होती है अनसेफ वाटर से. सो लेट्स डिस्कस सम ऑफ द क्वेश्चंस. व्हाट डज द डायग्राम शो? जो आपने डायग्राम देखा वो क्या शो करा था? इट शोज दैट हाउ द वाटर इज प्योरिफाइड फ्रॉम like starting from river, then where it is gone, then the next step, then all the steps were shown in that. Yes. What are the steps involved in it? The steps was collecting of river water, then sending into the reservoir, then sending into the sedimentation tank, then filtration tank, then the chlorination tank, and then sending into the our houses or homes. Yes. How does water get cleaned? Water clean होता कैसे है? जैसे आप अपने फेस को रब करते हो, मुंह को रब करते हो, साबुन से क्लीन होता है नहीं ना? So let's see the step how the water is cleaned. First the water is taken from the river. River से water लिया and then that is sent to the reservoir. Reservoir होता है, छोटी lakes होती है, it can be artificial और it can be natural. ठीक है? Reservoir में उस पानी को collect किया जाता है. Then this water is sent to the sedimentation tank. सेडिमेंटेशन टैंक वो टैंक होता है जहाँ पे बहुत
जो ये वाटर है वो जाता है तो इसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज होंगी। और सेडिमेंटेशन में बेसिकली जो सॉलिड इम्प्योरिटीज होती है, जो बड़ी लाइक मोटी मोटी लकड़ियाँ होगी या फिर मोटे मोटे पत्थर हो गए या किसी भी एनिमल की बोन्स होगी, जो भी, क्योंकि वाटर है, वाटर बॉडी है तो उसमें कुछ भी आता है, बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती है, सॉलिड इम्प्योरिटीज, बिग बिग इम्प्योरिटीज आर क्लीन इन द सेडिमेंटेशन टैंक। ठीक है, सेडिमेंटेशन टैंक में देन इट इज सेंट दैट वाटर इज आफ्टर क्लीनिंग फ्रॉम सेडिमेंटेशन टैंक, बड़ी बड़ी इम्प्योरिटीज निकल गई तो छोटी बचेंगी, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो नहीं दिखते हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो बहुत छोटे होते हैं, जो इन सेडिमेंटेशन टैंक में नहीं क्लीन होते हैं, देन इट इज सेंट द फिल्ट्रेशन टैंक। फिल्ट्रेशन टैंक में फिर ये फिल्टर होता है पानी, और फिल्टर होने में क्या करते हैं, उसमें स्मॉल स्मॉल इम्प्योरिटीज निकाली जाती है। सेडिमेंटेशन टैंक में big and solid impurities are removed, and in the filtration tank small impurities are removed. Then from here it is sent to the chlorination tank. It's sent to chlorination tank. Chlorination tank, chlorination होता है, एक दवाई होती है जो सोडियम और हाइड्रोक्लोराइड होती है, मतलब उसको मिक्स करके बनाते हैं, तो वो दोनों जो सोडियम और हाइड्रोक्लोराइड है उनको डाला जाता है इसमें टू किल द जर्म्स। सो उसको क्लोरिनेशन बोलते हैं। एंड आफ्टर द क्लोरिनेशन इट इज सेंट टू द स्टोरेज टैंक। फिर दोबारा से इसको स्टोरेज टैंक होता है उसमें भेजा जाता है, और स्टोरेज टैंक से इट्स कम्स टू आवर हाउसेस, और वो फिर हमारे घरों में पानी आ जाता है। सो लेट्स डिस्कस सम मोर क्वेश्चंस लाइक हाउ डज ईच स्टेप हेल्प टू क्लीन और प्योरीफाई वाटर। हर स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो लाइक हम जब रिवर वाटर को रिजर्वोयर में डालते हैं, रिजर्वोयर से वो जब सेडिमेंटेशन में आता है, सेडिमेंटेशन में क्या होता है, जो हमारी जो बड़ी बड़ी इम्प्योरिटीज़ होती है लाइक सॉलिड इम्प्योरिटीज़, वो नीचे बैठ जाती है। फिर जो ऊपर क्लीन वाटर होता है उसको हम फिल्ट्रेशन डालते हैं। फिल्ट्रेशन में क्या होता है, वहाँ ऐसे छोटे छोटे होल्स होते हैं कि वहाँ पर स्मॉल स्मॉल इम्प्योरिटीज़ भी बहुत इजीली ट्रैप हो जाती है, बहुत इजीली कैच हो जाती है। देन दे आर सेंट टू द क्लोरिनेशन टैंक। क्लोरिनेशन टैंक में द केमिकल इज यूज दैट मिक्स। क्लोरिनेशन में केमिकल्स डालते हैं, सोडियम और हाइड्रोक्लोराइड डालते हैं ताकि वहाँ पे जर्म्स किल हो सके। एंड देन दे आर सेंट टू द मेन टैंक एंड देन टू आवर हाउसेस। Why is each step important? Each step is important because कोई भी स्टेप मिक्स होता है, अगर बिग इम्प्योरिटीज मिस होती हैं सो हमारे घर में स्टोन्स, बोन्स, स्टिक्स ये आएंगे हमारे पानी में, हम बीमार हो जाएंगे। एंड एज वी हैव रेड वी विल बी हैविंग लॉट ऑफ डिजीजेस फ्रॉम द वाटर। देन अगर फिल्ट्रेशन नहीं हो पाया तो द स्मॉल इम्प्योरिटीज विल बी देयर, एंड इफ द क्लोराइन नहीं होगा, क्लोरिनेशन नहीं होगा तो उसमें क्या होगा, जर्म्स आ जाएंगे, हमारी बॉडी में जर्म्स जाएंगे, सो अगेन वी विल गेट इल एंड सिक। नेक्स्ट, हाउ इज क्लीन वाटर डिस्ट्रीब्यूटेड? द क्लीन वाटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड, जो हाउ इज क्लीन वाटर डिस्ट्रीब्यूटेड? क्लीन वाटर हमारे घरों में आता है थ्रू द पाइप। नेक्स्ट, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर एंड सप्लाई it to town and cities? Municipalities and the government, they are responsible for that purification of water. Now it's sharing time. You have to share whatever you have learned till now in this class. We have learned how the water gets like purified in different steps. Like first the water is collected from the river water to the reservoir. Reservoir में water, river water collect होता है, then that water from reservoir is sent to the sedimentation. In sedimentation solid impurities settle down, बड़ी बड़ी impurities होती है वो नीचे बैठ जाती है। बैठने के बाद क्या होता है, जो ऊपर वाला पानी जो क्लीन वाटर है, it is sent to the filtration tank. Filtration tank में स्मॉल इम्प्योरिटीज़ आर टेकन आउट, स्मॉल इम्प्योरिटीज़ निकाली जाती हैं। और स्मॉल इम्प्योरिटीज़ में क्या होता है, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं स्टोन के या सैंड के, जो सेडिमेंटेशंस में नहीं हुए फिल्टर, नहीं हुए क्लीन, वो होते हैं। देन दे आर सेंट टू द क्लोरिनेशन टैंक। इन क्लोरिनेशन टैंक द सोडियम एंड हाइड्रोक्लोराइड इज added to kill the germs, and after it again it is sent to the main tank, and after main tank it is sent to our homes and houses. So let's discuss some more questions like if the river water is purified, why do we still fill water or further filter it before using it? आपके घर में पानी आता है, आपके घर में फिल्टर लगा हुआ है, आरओ लगा हुआ है, तो
तो आप फिल्टर करते हो या आपकी मम्मी बॉयल करती है, वाई? ऑलरेडी तो वो हो चुका है, फिर आप क्यों करते हो? टू मेक श्योर कि हाँ ये पानी बिल्कुल जो थोड़ा बहुत भी फिल्टर नहीं है वो और फिल्टर हम अच्छे से फिल्टर कर लें, बॉयल करके हम जर्म्स किल कर लें. Next, what type of impurities may still be there in water after being treated with the process of sedimentation, filtration and chlorination? जब हम लोग सेडिमेंटेशन कर देते हैं, फिल्ट्रेशन कर देते हैं और क्लोरिनेशन कर देते हैं, उसके बाद भी थोड़ा बहुत रह जाता है. जब हमारा जो पाइप से पानी आ रहा है ना, तो हमें लगता है. The next question is, what type of impurities may still be there in water after being treated with the process of sedimentation, filtration and chlorination? ये sedimentation, filtration और chlorination करने के बाद भी और क्या impurities रह जाती हैं पानी में जो आपको लगता है? Some impurities like अगर if it is coming through a pipe, so हो सकता है वो पाइप कहीं से, it's not that कि जहाँ हमारे टैंक में से पानी आ रहा है तो बीच में कहीं पर भी टैंक जो पाइप टूटा ना हो, टूट गया हो तो वो डस्ट विल बी देयर, एनिमल्स विल बी देयर, सो all the impurities will be there. One thing. Second thing, if the pipe is of iron, वो लोहे का होगा, सो आयरन वाले पाइप में क्या होता है, रस्ट लगती है, यानी जंग लग जाता है. तो जंग भी जो है वो हमारे पानी में मिक्स होकर हमारे घर आते हैं. सो दीज आर सम इम्प्योरिटीज विच कैन बी. हो सकता है कि कहीं से पाइप टूटा हो और वो जो ड्रेन है उनके पास से वो हमारा पाइप निकलता हो, तो ड्रेन वाला पानी हो सकता है हमारे पानी में मिक्स होकर आ रहा हो. दीज आर सम इम्प्योरिटीज विच कैन बी लेफ्ट आफ्टर the process of sedimentation, filtration and the chlorination. So now it's a reading part that you have to read your page number 27 in your notebook. Sorry, from your content book. Read purification of water. ये आपने read out करना है. Try to draw this diagram in your notebook, and then you have to do your S2 of your workbook, page number 26. It is name the 3 steps involved in the purification of water. कौन कौन से 3 steps हैं जो involve होते हैं purification of water में? Second, why do we need to chlorinate water after filtration? Filtration करने के बाद भी हमें chlorinate क्यों करना पड़ता है water को? Third, why is it important to purify river water before we can use it? River water को purify करने की ज़रूरत क्या है यूज़ करने से पहले? नेक्स्ट इज वाई डू सम पीपल यूज अ वाटर प्योरीफायर टू प्योरीफाई टैप वाटर बिफोर ड्रिंकिंग? जो टैप का जो पानी होता है वो हम नहीं पीते हैं, पर उससे पहले हम उसको प्योरीफाई करते हैं, चाहे बॉइलिंग से चाहे फिल्ट्रेशन. वाई डू वी डू सो? यू हैव टू राइट दैट. नाउ द योर होमवर्क इज दैट यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 1, 3 and 4 ऑफ पेज नंबर 30. 1, 3 and 4 of page number 30. One is that you have to match A, B and C is here, the caps A, B, C, D, and there are the small A, B, C. So please don't match like this. Please write A, B, C, D. Question number 3 is, why do we need to clean the river water before supplying it to homes? घर में आने से पहले हमें river water को क्यों clean करने की ज़रूरत है? 4th is, why are storage tanks that supply water to homes made at a height? जो storage जो tanks होते हैं उनको हम जो हमारे घर में जो टैंक्स होते हैं उनको छत पे क्यों रखा जाता है, ये हमें लिखना है. सो नाउ इट्स टाइम फॉर सम अप. सो लेट्स सी व्हाट वी हैव डन टुडे. टुडे वी हैव रेड अबाउट हाउ द वाटर गेट प्योरीफाइड और फिल्टर्ड बिफोर रीचिंग आवर होम फ्रॉम द रिवर, द जर्नी ऑफ द वाटर फ्रॉम द रिवर वाटर till our home. So let's see. The first is that river water is collected and stored in a reservoir. रिजर्वायर में स्टोर किया जाता है. स्टोर करने के बाद देन दैट इज सेंट टू द सेडिमेंटेशन टैंक. इन सेडिमेंटेशन टैंक द सॉलिड इम्प्योरिटीज सेटल डाउन. जो सॉलिड इम्प्योरिटीज होती है वो नीचे बैठ जाती हैं और उनको फिर जो ऊपर वाला जो क्लीन वाटर है इट इज सेंट टू द फिल्ट्रेशन टैंक. इन फिल्ट्रेशन टैंक द स्मॉल इम्प्योरिटीज आर लाइक रिमूव फ्रॉम इट with the help of small holes. वहाँ से रिमूव हो जाती है. then it's sent to the chlorination tank. chlorination tank में देने के बाद क्या होता है, then the chemical is like used to kill the germs, sodium or hydrochloride. After killing the germs it is sent to the storage tank. और स्टोरेज टैंक में पहुंचने के बाद फिर जो गवर्नमेंट होती है हमारी या म्यूनसिपैलिटीज होती है हमारी,
that sends the water to our home, हमारे घर में पहुंच जाता है. And before drinking that water, we filter it or we boil it so that जो यहाँ से जो ये वाला बीच वाला जो ये पार्ट है और यहाँ ये वाला पार्ट है, इसमें यहाँ पे वो जर्म्स किल हो गए, इधर आया पानी, कुछ इम्प्योरिटीज हो सकती हैं. दैट स्टोरेज टैंक से हमारे घर में बीच में रास्ते में कुछ इम्प्योरिटीज आ सकती हैं. सो फॉर मेकिंग इट श्योर कि वो वाटर बिल्कुल ना फिल्टर्ड है, बिल्कुल प्योरीफाइड है, सो वी बॉयल इट एंड फिल्टर इट. So I hope the topic is clear to you. The resources that we need for tomorrow's class are the content book, notebook, workbook and your pencil. So keep the resources ready with you so that we can do the activity. There is one more amazing fact that 85% of illness is caused due to the water impurities. Water impurities की वजह से 85% of illness होती है throughout the world, developing world के अंदर. So thank you and have a nice day.